Hello everyone. So today we'll discuss about the Food Adulteration Act. Already I have taken two classes in food adulteration. What is the adulteration and how this adulteration affect our health. Okay. What are the standards of the adulteration? What are the rules and regulation of the adulteration? Okay. So today we'll discuss about in this topic a very small thing is left, that is the Adulteration Act. Okay. So that the food adulteration, as we are know that it is an international adult addition of non-permitted foreign materials. Correct. Intentionally, actually not intentionally. I had told it before that is a adulteration. Whether it is a sometime intentionally, sometimes non-intentionally. Uh, some substance will be additive in our food which are purchasing from the market. Okay. So the food adulteration is defined as the intentional addition of the non-permitted foreign matter. Okay, for these kind of the adulteration, governments are make some standards in the policies which are follow. Through that, we have to prevent this adulteration and to save the life of the human. Okay, so in that, why we are adulterating the food, why we are doing some addition substances in the natural food. What are the reasons? So there are the some reasons. The first one, get more profit, especially the stakeholder, okay, और जो ये सब क्या कहते हैं डीलिंग करते हैं बिजनेसमैन है या फिर जो लोग जहाँ पे ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, दे वांट मोर प्रॉफिट, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वालिटी 100 ग्राम या 100 किलोग्राम, आपके पास कोई मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और मार्केट में उसका डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो मोर प्रॉफिट के लिए वो क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। सो हाउ दे विल इंक्रीज देयर वॉल्यूम बाय देयर नेचुरल इंग्रेडिएंट, नो, उनका मैन्युफैक्चर तो 100 किलोग्राम ही हुआ है, तो उस 100 किलोग्राम में 50 किलोग्राम वो क्या करेंगे, एडिशन ऐड करके वॉल्यूम को एनहांस करते हैं सो दैट दे विल गेट मोर प्रॉफिट। ओके, and they are providing a less qualitative product uh, to the persons. Okay, to increase the weight and adulteration is added, ठीक है, इससे क्या होता है, adulteration add होने से क्या होता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतने ज्यादा क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है, तो उतने टाइम तक आप उस प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हो जिससे आप बहुत से प्रॉफिट ले सकते हो। टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड बाय शोइंग द लोअर प्राइस, ठीक है, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लो मीन्स आपने उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, आपके पास तो वो 1000 किलोग्राम का है या 100 किलोग्राम का है, आपने उसे 150 किलोग्राम कर दिया है, ठीक है, आपको पता है कि 50 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करते हो, उसको स्लाइट लो प्राइस में सेल कर देते हो सो दैट कि आपको क्या है, प्रॉफिट भी हो और आपकी सेलिंग भी हो जाए एज कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस, ठीक है। So these are the mainly cause of the food adulteration. Okay, so adulteration is intentionally or non-intentionally. Okay, generally we are focusing on maintaining the act for the intentionally. Non-intentionally, like if the person who are manufacturing the product at the time of the packing and the selling or at the time of the cleaning and all that, they are not maintaining the hygiene as well as the environment, not only the person hygiene, the environmental hygiene में जहाँ पे वो सप्लाई कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, या जहाँ पे भी वो लोग उस चीज को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या है, अनहाइजीनिक कंडीशन से वो लोग उसकी पैकिंग कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो रियल जूसेस होते हैं उसमें कई बार कुछ इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं या फिर छिपकली थी, मरी हुई छिपकली थी एंड ऑल दिस थिंग, एक्चुअली वो इंटेंशनली वो चीज नहीं डालते हैं, तो इंटेंशनली डालेंगे तो प्रोडक्ट का कभी नहीं बिकेगा, ठीक है, वो अनइंटेंशनली यानी कि वो क्या करते हैं, उसमें फोकस नहीं करते हैं, प्रॉपरली उसको बनाते नहीं है, ठीक है, फोकसिंग नहीं करते हैं, उसमें टेंशन नहीं देते हैं, सिंपली दे आर डूइंग पैकेजिंग, ठीक है, विदाउट कंसंट्रेटिंग, तो जिसकी वजह से अनइंटेंशनली कुछ इंसेक्ट्स या फिर कोई भी ऐसी थिंग जो क्या करती है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है।
नाउ दैट व्हेन इज फूड सेड टू बी अडल्ट्रेट, कब एक फूड को अडल्ट्रेशन की एक्चुअली जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट इज होल या पार्सली अब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, जो आपके पास एक्चुअल जो फूड है वो क्या है, अब्स्ट्रक्टेड है। अब्स्ट्रक्टेड मीन्स किसी वजह से क्या हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आने लग गई, ठीक है, जिसकी वजह से अब उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमें, अब उस फूड की लाइफ को लॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली अडल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। अडल्ट्रेशन, कुछ अडल्ट्रेशन द गवर्नमेंट ने अलाउ किया है विच आर नॉट एक्चुअली आर अफेक्टिंग आवर हेल्थ, सो दैट कि हम उस फूड को, मटेरियल को, उसकी लाइफ को थोड़ा बढ़ा सके, एज वेल एज वी हैव टू सेंड दिस आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, बिकॉज एक ही प्लेस में सारे फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते। इन ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए फेमस है, ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट से मीन्स वन स्टेट से प्रोडक्ट को अनदर स्टेट में सेंड करना, फिर वहाँ पे स्टोरेज करना, तो जब तक कि वो स्टोरेज हो रहा है या फिर सेंडिंग टाइम जो है उसका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम जो है, उस टाइम में उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम अडल्ट्रेशन करते हैं। आर्टिकल इज प्रिपेयर्ड, पैक्ड और कीप अंडर द इन सैनिटरी कंडीशन, ठीक है, सो दैट की जो आर्टिकल जो कहते हैं इन सैनिटरी कंडीशन है उसको प्रॉपरली पैक करने के लिए, उन्हें प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट उनकी जो नेचुरल क्वालिटी और जो कलर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसके लिए हम अडल्ट्रेशन करते हैं। इफ देयर इज अ रोटीन डिकम्पोज और द इंसेक्ट इन द मटेरियल, कोई इंसेक्ट मटेरियल में है या फिर आपने देखा होगा कि डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप बहुत टाइम तक किसी भी फूड को वन प्लेस में रखते हो, तो डिकम्पोजिशन ना हो एज इट इज उसे अनदर प्लेस में और या फिर उसको लॉन्ग टाइम तक हम उसे सेव कर सकें या एक प्लेस से अनदर प्लेस में से हम ट्रांसफर कर सकें, उसके लिए भी क्या करते हैं, हम अडल्ट्रेशन करते हैं। अनप्रिस्क्राइब्ड कलर सब्सटेंस, ठीक है, मीन्स आपने देखा होगा कि हम जब भी कुछ कोई फूड ईटिंग करते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज खाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग होता है खाने से पहले, टेस्ट करने से पहले उसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, इट मे बी कि फूड अंदर से बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो जनरली डिनाई द फूड, हम क्या करते हैं, बाय लुक हम डिनाई करते हैं, नो नो ये मुझे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं, जैसे क्या हम टेस्ट नहीं करते, फर्स्ट साइन हमारा ये होता है, बाय द रीजन वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द फूड इज गुड और नॉट, ओके, तो अगर वो प्रॉपर कलर में अनप्रिस्क्राइब्ड कलर है तो भी हम एडिशन कर सकते हैं। एनी प्रोहिबिटेड और एक्सेसिव प्रिजर्वेटिव, ठीक है, देन इफ द स्टैंडर्ड इज नॉट मेंटेन, अगर वो फूड क्या होता है स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, मीन्स ऐसी कंडीशन में अडल्ट्रेशन किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड मेंटेन, फूड के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या फिर उसे प्रिजर्व करने के लिए, या फिर उसके मीन्स उसका जो कलर है उसे गुड कलर देने के लिए, या फिर उसमें कोई पॉइजनस थिंग्स ना हो और एनिमल्स मीन्स कोई भी उसमें माइक्रोब्स बैक्टीरिया प्रेजेंस ना हो, ठीक है, या फिर उसका जो मटेरियल है वो डिकम्पोज ना हो, ठीक है, उसी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, पैक करते टाइम उसकी सैनिटरी को मेंटेन करने के लिए। नाउ हु डज दिस एंड व्हाई, अब ये कौन करता है और क्यों करता है, तो मर्चेंट एंड द ट्रेडर टू मेक क्विक प्रॉफिट, ठीक है, तो मर्चेंट मतलब होता है जैसे जो सौदागर होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जनरली ये प्रॉफिट के लिए एडिशन करते हैं। स्टोरेज एंड द इंक्रीजिंग प्राइस, उस पर्टिकुलर थिंग को स्टोर करने के लिए, प्राइस को इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर डिमांड, जितनी ज्यादा किसी चीज की डिमांड होती है उतने ज्यादा क्या होता है उसमें एडिशन की जाती है, सो दैट कि मार्केट में हम उस चीज को अवेलेबल कर सके और हमारी सेलिंग ज्यादा हो सके। लैक ऑफ अवेयरनेस, जिनको अवेयरनेस नहीं होती कि अडल्ट्रेशन किस चीज की करनी चाहिए किस चीज की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। Food adulteration is dangerous as it affects the health. It may be toxic and deprive from essential nutrients. ठीक है, तो फूड एडल्ट्रेशन से जनरली क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ क्या होता है, हम फूड एडल्ट्रेशन नहीं करते, वाई बिकॉज ये एक्चुअल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, या फिर जो एक्चुअल की जो क्वालिटी है, जैसा कलर, जो टेक्सचर है उसका, जो टेस्ट है उसका, वो क्या होता है स्पॉइल हो जाता है जनरली, इसलिए हम कहते हैं फूड एडल्ट्रेशन is a very dangerous and is directly affect our health, okay। नाउ द कॉमन अडल्ट्रेशन प्रेजेंट इन फूड, जैसे मिल्क में एडिशन किया जाता है वाटर का और रिमूव किया जाता है फैट को, स्किम मिल्क सॉल्युबल स्टार्च प्रेजेंस होते हैं, क्रीम में फॉरेन फैट प्रेजेंस होते हैं, घी हाइड्रोजनेटेड फैट और एनिमल फैट प्रेजेंस होते हैं, वेजिटेबल्स में चीप और नॉन एडिबल ऑयल लाइक
लिनसीड, मिनरल सॉइल ये ऐड किए जाते हैं। देन व्हीट एंड राइस में आपने देखा होगा व्हीट और राइस में बहुत ज्यादा स्टोन प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बंगाल ग्राम दाल में केसरी दाल मिक्स की जाती है। चिली पाउडर, स्टार्च, कलर, रेड बाइट आर ड्राई, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, आप या पहले जो चिली थी हम थोड़ा भी इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे, तो हमें कहते इमीडिएटली इफेक्ट करता है, हमें ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ता है। वाई? बिकॉज देखिए एडिशन एज लाइक इन सॉल्ट ऑल्सो। ब्लैक पेपर, द ड्राई पेपर सीड, पपाया सीड, आपने देखा होगा पपाया के जो बीज होते हैं उनको मिक्सचर किया जाता है और वो ब्लैक पेपर में एज अ ब्लैक पेपर से यूज करते हैं, ब्लैक पेपर में उसको ऐड करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते जाते हैं। द हनी, कलर्ड शुगर सिरप, ठीक है। हनी में क्या होता है, कलर शुगर सिरप ऐड किया जाता है। देन टी, एक्सोर्टेड टी लीफ, जो एक्सोर्टेड टी लीफ है उसमें टी में वो ऐड की जाती है, जिसकी वजह से क्या एक्चुअली जो हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए उस क्वालिटी में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, यहाँ जो पीपल्स हैं, उन्हें वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। नाउ फूड कंटामिनेटेड एज एलर्जेन, ठीक है। तो फूड कंटामिनेट कब होता है एज एलर्जेन? द कंटामिनेशन ऑफ द फूड, फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेटिव, insecticide, insect extra, and the fragment may act as an allergen. The food may be itself may be harmless, ठीक है। जब किसी फूड में कोई प्रिजर्वेटिव डाला जाता है या फिर कोई इंसेक्ट उसमें प्रेजेंस होता है या फिर कोई फ्रेगमेंट उसमें डाली जाती है, तो उस पर्टिकुलर फूड से क्या होता है, एलर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एलर्जी कहते हैं इट मे बी कि जो सब्सटेंस हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो उस फूड को हार्म नहीं करता, लेकिन उस फूड के बाद जो उसे ईट करता है, ठीक है, वो उसे क्या करता है, हार्म करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव ऐड है, प्रिजर्वेटिव क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है फूड को, लेकिन अगर मैं एक्सेस अमाउंट में ऐड है उससे क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली अफेक्ट टू हेल्थ बिकॉज ऑफ द केमिकल। द कॉमन एडिटिव इंक्लूड, जैसे कलर एडिटिंग की जाती है, आपने देखा जो कैंडीज डिफरेंट कलर कैंडीज आती है, तो फ्लेवर्ड कलर कैंडीज आती है, मटेरियल एंड द प्रिजर्वेटिव एंड द इंसेक्टिसाइड। Now, the PFA, the Prevention of the Food Adulteration Act is 1944. According to that, this act prohibits the manufacture, sale, distribution of not only the adulteration food but also the contaminated with the microtoxicant and the misbranded food, ठीक है। जो अडल्ट्रेशन एक्ट था वो सिर्फ अडल्ट्रेशन के लिए नहीं, यानी कि जो आपने जो भी कलर या फिर प्रिजर्वेशन जो केमिकल ऐड किया है फूड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, सिर्फ इसलिए ही नहीं, बल्कि ये जो क्या था, ये जो एक्ट था, दे आर ऑल्सो प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर, यानी कि जहाँ पे वो बन रहा है उसको उन्होंने प्रोहिबिट करा था। एज वेल एज उन्होंने अडल्ट्रेशन फूड आल्सो द कंटामिनेटेड, अगर फूड कंटामिनेटेड है तो क्या है, कंटामिनेटेड फूड है, इंसेक्टिसाइड से कंटामिनेटेड है या बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंस है, ठीक है, या हाइजीनिक प्रॉपर नहीं है, तो भी उस फूड को प्रोहिबिट कर दिया जाता है उसके मैन्युफैक्चर को, ठीक है। इसके अलावा उसमें अगर माइक्रो प्रेजेंस नहीं है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंस है जो डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करता है, या मिस ब्रांडेड फूड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि एक ब्रांड, कोई भी ब्रांड क्या करता है, अपने ब्रांड को सेल करने के लिए एक गुड ब्रांड का प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको अपने ब्रांड में मिक्सअप करता है कुछ क्वालिटी, और उसके बाद अपने ब्रांड का नेम लेके उसे सेंड कर देता है, दैट इज अ मिस ब्रांड। आपने देखा होगा कि इसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं डुप्लीकेट माल, ठीक है। तो डुप्लीकेट माल क्या, यही माल है, एक्चुअली इसमें लिखा तो जाता है कि ब्रांड का नेम, लेकिन वो एक्चुअलाइजेशन उसकी ब्रांडेड नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी जहाँ पे भी ऐसे सेल किया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ऐसी प्रोडक्ट्स को, उन्हें क्या करता है, प्रोहिबिट करना according to the Food Adulteration Act. Okay, they are the standard specific for the pasteurizing milk, milk powder, and the infant milk food. ठीक है। तो जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू प्रोवाइड सम स्टैंडर्ड, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, रूल्स रेगुलेशन दिए हैं मिल्क पास्चराइजेशन के लिए, मिल्क पाउडर मेड करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, इन्फेंट मिल्क आपने देखा होगा 0 डेज से लेके और आपके 5 ईयर तक बेबी, नॉट ओनली 5 ईयर के 3 ईयर तक बेबी के लिए क्या होता है, मिल्क पाउडर प्रेजेंट होता है। तो जो भी मिल्क फूड प्रेजेंट होता है वो क्या कहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फूड एडल्ट्रेशन फूड एक्ट, जो माने फूड सेफ्टी department है, they are providing some standard and these standards which will be followed by the manufactured companies, okay, जो कि इस प्रोडक्ट को बनाती हैं। तो food shall be the deemed to be the adulteration the first way not up to the standard, ठीक है। कब उसको adulteration में डाला जाता है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती। अदर सब्सटेंस विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस,
अडल्ट्रेशन सॉन्ग का बट जब क्या करते हैं फूड को अडल्ट्रेशन के कब एक्ट नहीं किया जाता है, मतलब ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे अडल्ट्रेशन है जो पर्टिकुलर क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा है, inferior or the cheap substance used to substitute, अगर आप कोई ऐसा चीप सब्सटेंस यूज कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए या फिर एज अ सब्स्टिट्यूट से यूज करो, जैसे मैंने आपको कहा कि पपाया के जो बीज हैं वो ब्लैक पेपर एज अ यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी चीप सब्स्टिट्यूट। substance has been wholly or the partially abstracted, क्योंकि जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो वो क्या एक्सट्रैक्टेड है। प्रोड्यूस हैज बीन प्रिपेयर्ड पैक कीप अंडर अनसैनिटरी कंडीशन, जब भी आप उसे प्रोडक्ट कर रहे हो मीन्स आप पैक कर रहे हो तो अनसैनिटरी कंडीशन में आप उसे पैक कर रहे हो। पॉइजनस और अदर इंग्रेडिएंट विच बी रेंडर इट कंटेन इंजूरियस टू द हेल्थ, कोई भी ऐसी थिंग जो कि पॉइजनस प्रोड्यूस करती है। प्रोहिबिटिंग द प्रिजर्वेशन एडेड टू द प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं फूड प्रोडक्ट्स में ऐड करने के लिए। क्वालिटी और द प्योरिटी फॉल बिलो द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड, जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है फूड के, जो रूल्स रेगुलेशन है, तो आपने देखा होगा कि जो जैसे फॉर एग्जांपल बीच में मैगी बैंड हो गया था, तो मैगी में कहते हैं लेड प्रेजेंस था, तो लेड कैसे पता चला कि उसमें प्रेजेंस है, कि मसालों में क्या था, लेड प्रेजेंस है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। और स्पेशली मैगी क्या करते हैं आपके आपके फ्रॉम एंड हाफ ईयर ऑफ बेबी से लेके जितने भी एज ग्रुप पर्सन है वो सभी लगाते हैं मैगी पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसको बीच में प्रोहिबिटेड कर दिया था, बैन कर दी गई थी मैगी, अब दोबारा से आई है। तो ऐसा क्या हुआ, फूड जो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, दे आर एक्चुअली कंडक्टिंग वन ऑडिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट and they are founding there are something the substance which is played which are creating a health problem in the people, okay. So they are prohibiting the manufacture, selling, and the distribution of the particular product. Okay, and quality and purity. If they are failing the quality and purity according to their standards, जो कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, तो भी क्या करते हैं वो मैन्युफैक्चर, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बैंड हो जाता है, ठीक है। So food laws and the regulations. So what are the regulations, laws and regulations for the food? The first one, our objective is to meet the country's sanitary requirement. जो हमारी कंट्री है उसकी सैनिटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, फूड मस्ट कंप्लीट कंपाइल विद द लोकल लॉज रेगुलेशन टू गेन अ मार्केट एक्सेस। जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन लॉज है फूड के लिए कि उसे इस क्वालिटी को मेंटेन करना है या उसकी क्वांटिटी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, तो फूड ऑलवेज क्या सके उस क्वालिटी को गेन कर सके, इसीलिए क्या होता है ये भी लॉज रेगुलेशन रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो भी मैन्युफैक्चर करता है किसी भी प्रोडक्ट का, दे हैव टू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट दे हैव टू मीट दिस quality, okay, they have to maintain the sanitary requirement of the consumers, okay. Then these law ensure the safety and the suitability of the food for consumers. तो ये लॉ क्या करते हैं, जनरली प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी और सुटेबिलिटी, बिकॉज व्हेन दे आर फॉलोइंग दीज रूल्स रेगुलेशन, तो क्या होगा, वो एक गुड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, जब गुड क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चर करेंगे देन इट विल बी मेंटेन द सेफ्टी एंड द सुटेबिलिटी ऑफ द फूड, especially for the consumer those are purchasing this food from the market, okay। आपने ये मार्क देखा होगा, भारत सरकार, that is the government of India, AG mark, the agriculture grading marketing, okay, the Directorate of Marketing and the Inspector enforcing the Agriculture Produce Grading and Marketing Act in 1937, under this act grade standard are the prescribed for the agriculture and the agri, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट के इन्होंने कुछ ग्रेड दिए थे, ग्रेड स्टैंडर्ड देते थे कि ये फर्स्ट क्वालिटी है, ये हाई क्वालिटी है, ये मीडियम क्वालिटी है, लो क्वालिटी ऑफ फूड है, ठीक है। तो एज मार्क इज क्वालिटी सर्टिफाइड मार्क, एक्चुअली क्या है, क्वालिटी सर्टिफाइड मार्क है अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये फूड की क्वालिटी की ऑडिटिंग की जाती है, ऑडिटिंग में से क्वालिटी चेक की जाती है, then afterward we have to find out whether the food quality is the upgrade or low grade, okay। it ensure the quality and the purity of the product, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मार्क लगा है तो वो इंश्योर करता है कि इसकी क्वालिटी और प्योरिटी गुड है, ठीक है। इट एक्ट एज थर्ड पार्टी गारंटी टू क्वालिटी सर्टिफाइड, तो ये कौन करता है, थर्ड पार्टी करता है, सो दैट कि इसमें कोई भी बायसनेस ना हो, ठीक है। The quality standard for the agriculture commodities are the frame based on their strict quality. तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं
वो क्या करती हैं, फ्रेम करती हैं इसकी क्वालिटी को, सो दैट इसकी क्वालिटी करते हैं हाई स्टैंडर्ड्स हो सके. Now the ESMARC, the standard are being the harmonized with the international standard keep in a view to WTO requirement. तो जो भी जो हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि स्टैंडर्ड होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग टू देयर लॉज दे आर फॉलोइंग, सो दैट कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड एग्रीकल्चर मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हम उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेंगे. ठीक है. सर्टिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, बिकॉज हमारे यहाँ से बहुत, हमारी कंट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कहते हैं एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है. तो वी हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल एंड नेशनल, so that we have to maintain or we have to fulfill the requirement of the World Trade Organization. The certification of the agricultural commodities is carried out for the benefit of the producer, manufacturer, the consumer. जो सर्टिफिकेशन होता है एग्रीकल्चर का, ये करता है कंपलसरी होता है, जिससे कि हर किसी को कहता है कैरी आउट करना होता है. और ये कहता है बेनिफिट देता है प्रोड्यूसर को, जो क्या कहता है मैन्युफैक्चर कर रहा हो प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को बना रहा हो, या फिर कंज्यूमर जो क्या कहता है उसे सेल कर रहा हो. देखो अगर जो बना रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अगर मिक्सिंग नहीं करेगा, गुड क्वालिटी देगा, तो डेफिनेटली उसका ब्रांड और उसका जो नेम है वो कंटिन्यूसली मार्केट में अच्छा रहेगा. ठीक है. उसकी सेलिंग और भी अच्छी रहेगी. सेकंड थिंग, जो कंज्यूमर है, कैसे सेलिंग अच्छी रहेगी, कंज्यूमर क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वी हैव टू means we need to a good qualitative product as in a natural, जिसके नेचुरल जो इंग्रेडिएंट है वो उसमें प्रोड्यूस करें. ठीक है. हमें कोई मिक्सिंग ना मिले. जनरली देखो अगर हम कोई मिक्सअप फूड लेते हैं उसके लिए हम मनी देते हैं, जो हम अनमिक्सअप फूड लेंगे उसके लिए हम मनी देना है. तो कंज्यूमर की थिंकिंग क्या होती है, वी नीड टू अ गुड प्रोडक्ट बिकॉज हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके. द फर्स्ट थिंग इज द हेल्थ एंड द थिंग इज द सेकेंडरी थिंग. ओके. Now the products, like products available under the edge mark are the following. जैसे pulses, pulses में edge mark मीन्स होते हैं whole spices और ground pieces के लिए edge mark होना जरूरी है. Then vegetable oils के लिए, wheat products के लिए, other products से honey हो गया, rice हो गया, टोपिको सैगो हो गया, सीडलेस हो गया, टर्मेन हो गया, या बेसन हो गया. ठीक है. ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये होते हैं एज मार्क, इन्हें क्या कहते हैं क्वालिटेटिव मींस ऑडिट के थ्रू उनकी क्वालिटी को चेक करता है. देन ओनली ये दे हैव टू मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिस प्रोडक्ट. So today we'll discuss about the act, why we are making this standards, rules, regulation, just because of we have to maintain the quality. Okay, because we are selling the food in the national and international level, so we have to maintain the national international laws, which are actually maintaining the quality and the product of the food. Okay, the natural ingredient of the food, which should prevent the adulteration which are directly affect to our health, because every consumer want to purchase a good qualitative food, because health is the most important thing. The first thing is a health. Okay, another thing is secondary. So first of all we have to focus for our health. We need a fresh and high qualitative and natural food. Okay. Thank you so much. If you have any doubts, you can